Good morning, everybody. So we'll do survival models today. I hope you all can hear me. Yes, ma'am. Starting with question 1. If mu x is equal to 0.01908 plus 0.01 x minus 70 for x greater than equal to 55, calculate 5q 60. So, word. In word, first we'll write to calculate this. First we have to use the value of sorry, just a second. We were given mu x and we had to calculate 5q60. First, we need to calculate 5p60. So, question 1. Alt equals to. Now, see how to write 5p60, everyone. First, you need to give a space, then give underscore. First space, then underscore 5. Okay. Then space p underscore 60 and give space. So this will become 5p16. You will see an empty box here. Just put a space in that empty box when you click it. I'll write that once again. Write this. Alt equals give alt equals to space underscore 5 space p underscore 60 space and this value. What you can do is the easier method is instead of writing 5p60 or something, just write space underscore t space p underscore x. Okay, and give space. Then come to this box, give space and save this as new equation. Okay, save this as new equation. You will see here this box opens. In this box, write the name like TPX. Mine is already created. Equations in your category, whatever category you want to create. Okay. And then save in building blocks. And then this is very important. Insert contents only. This you have to do to get your thing. See, mine is already saved here. So insert equation. My TPX is already saved. And the shortcut I have created is Control-Shift-P. Okay, Control Shift P is the shortcut I have created. How to create shortcuts? File, options, customized ribbon, customize, go down building blocks. In this building block, this is TPX ka value and select press new shortcut key Control Shift P. I had clicked assign and close. Do till here everybody at least save your TPX in your Word. And then we'll just change the values whenever required. जब ये 5 की 60 लिख रहे तो ऊपर में 5 के ऊपर में एक बॉक्स आ रहा है और फिर उसको डिलीट करने से पूरा वैल्यू डिलीट हो जा रहा है. हाँ, डिलीट करो नेहा, डिलीट मत करो. हम दिखाए थे ना, देखो. When I am also writing, मेरा भी आ रहा है space underscore 5 space p underscore 60 space. ये बॉक्स आ रहे हैं, यहाँ पे जाके एक स्पेस दे दो. डिलीट नहीं बोल रहे, स्पेस देने बोल रहे हैं. अच्छा, ओके. दी सेव कैसे करते हैं तो वापस बताऊंगी. सेव वापस बताएं. ओके, तो दिस इज माय इक्वेशन. यहाँ पे ये डाउन एरो की सेव एज न्यू इक्वेशन और उसके बाद यहाँ पे जो नेम जो देना है दे दो. गैलरी तो इक्वेशंस में रहेगा. कैटेगरी तुमको एक्चुअल क्रिएट करना है एंड सो ऑन, जो भी क्रिएट करना है यू कैन. सेव इन बिल्डिंग ब्लॉक्स ही होगा और ऑप्शंस इंसर्ट कंटेंट्स ओनली करो. ऑप्शन में इंसर्ट कंटेंट्स ओनली करना, तब वो अपने ही लाइन में इंसर्ट हो जाएगा. ओके, एंड प्रेस ओके, तो वो सेव हो जाएगा. ठीक है. My preference will be all save TPX instead of 5p60 because TPX में फिर T और X का values change कर सकते हैं.
और दी शॉर्टकट कैसे क्रिएट करना? फाइल, ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन, कस्टमाइज, एकदम नीचे जाके बिल्डिंग ब्लॉक्स, यहाँ पे तुम लोग का जहाँ पे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टेड रहता है तो देख लेना कि कहाँ पे नाम आ रहा है। मेरा ऊपर में आ रहा है। और उसके बाद प्रेस न्यू शॉर्टकट की में कंट्रोल शिफ्ट और जो भी स्टार्ट आपका होगा आवाज शॉर्टकट। ब्रेक हो रहा है। जी, आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। हो गया दी शॉर्टकट की क्रिएट। थैंक यू। अभी आवाज क्लियर आ रहा है? हाँ अभी दी क्लियर। मैम कस्टमाइज के बाद क्या करना है? कस्टमाइज फाइल, ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन, कस्टमाइज, एकदम नीचे आओ, बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल के एक ऑप्शन होगा। हाँ उसके बाद अपना जो भी नेम सिलेक्ट करना है वो नेम सिलेक्ट कर लो और फिर प्रेस न्यू शॉर्टकट की में जाके कंट्रोल शिफ्ट और की। आई विल प्रेफर कंट्रोल शिफ्ट, क्योंकि कंट्रोल सी अगर देते हो, कंट्रोल पी देते हो, तो जो एग्जिस्टिंग शॉर्टकट्स है वो ओवरराइट हो जाएगा। मतलब कंट्रोल सी दोगे तो कॉपी फिर वर्क नहीं करेगा वर्ड में। तो कंट्रोल शिफ्ट देना, जो चीज तुम लोग को याद रहे, एंड वॉट एवर शॉर्टकट्स यू आर क्रिएटिंग प्लीज नोट इट डाउन समवेयर इन योर कॉपी। तुम लोग को याद है कि कौन से फंक्शन के लिए, कौन से सिंबल के लिए कौन सा जी, शॉर्टकट तुम लोग। हाँ जैसे आपने जब प्रेस न्यू शॉर्टकट की में क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट सी टिपा और ऑटोमेटिकली करंट कीज में आ गया, मेरा आ नहीं रहा है वैसे। श्रुति, मेरे को कंप्लीट करने दिया करो फिर बोला करो। आई वाज सेइंग समथिंग। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करो, फिर शिफ्ट प्रेस करो, पी प्रेस करो, आ जाएगा। एक बार ट्राई करो, डोंट राइट इट, यहाँ पे क्लिक होना चाहिए कंट्रोल शिफ्ट पी। दी वो क्लिक करने से प्रेस न्यू शॉर्टकट की में आ रहा है, लेकिन करंट कीज में वैसे नहीं आता। हाँ, करंट कीज में असाइन करने के बाद आएगा। मेरा तो पहले से असाइंड है ना, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है। अच्छा तुम लोग अच्छा, असाइन कर दोगे तब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, असाइन करके क्लोज करोगे तो वहां पे, यहाँ पे करंट कीज में डिस्प्ले करेगा। आदि हो गया। सो 5p60। अब इसके बाद p का वैल्यूज नॉर्मली लिखते हैं e टू द पावर ब्रैकेट से -int अंडरस्कोर 0 टू द पावर 5 एंड देन \mu अंडरस्कोर 60 प्लस t एंड dt। ठीक है, ये हम लोग का फंक्शन, सॉरी आई डिड नॉट क्लोज दिस, ये आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इक्वल्स टू ऑल्ट इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस, इसको सॉल्व करना है, \int अंडरस्कोर 0 टू द पावर 5 म्यू 60 का वैल्यू दिया हुआ है 0.01908 प्लस 0.001 इंटू t माइनस 10 dt। ओके, तो इक्वल्स टू ऑल्ट इक्वल्स टू देके इसको सॉल्व करेंगे तो
नहीं वो ई के पावर में कैसे आया, मतलब मेरा में खाली ई के पावर में ब्रैकेट्स में ही रहते हैं। देखो जब हम लोग लिख रहे हैं ना इंटीग्रल में, तो ये dt हाईलाइटेड रहेगा। देखो ये ब्लू पोर्शन हाईलाइटेड है, ठीक है। लेफ्ट राइट एरो की प्रेस करो, ये हाईलाइटेड पोर्शन चला जाएगा, तब ब्रैकेट क्लोज करके स्पेस दो तो वो पावर में चला जाएगा। और भी हम लोग जो यहाँ पे म्यू 60 प्लस टी लिख रहे हैं ना, तो मेरा अंडरस्कोर मुझे 60 आ रहा है, वो टी साइड में आ रहा है। 60 प्लस टी वाला हाँ, ऐसे लिखना है। देखो बैकस्लैश म्यू अंडरस्कोर ब्रैकेट्स में 60 प्लस टी स्पेस, पूरा नीचे आ जाएगा। अभी आ रहा है सबका? आ चुकी, आ रहा है? आगे आगे। 3 मेरा पावर में नहीं गया। e टू दी पावर माइनस वाला पावर में नहीं गया? नहीं, alt equals to e to the power बैकस्लैश int, फिर e टू दी पावर माइनस, अच्छा सॉरी एक सेकंड, e टू दी पावर बैकस्लैश माइनस int स्पेस दिए। स्पेस देने के बाद 0.001 प्लस जो भी लिख रहे हो 0.09 s लिखे, ds लिखे, ठीक है। ब्रैकेट्स क्लोज करो, बाहर आओ, स्पेस देखो चला जाएगा। यू हैव टू बी आउट ऑफ योर हाईलाइटेड रीजन। तुम लोग अगर हाईलाइटेड रीजन के साथ रहोगे तो नहीं जाएगा पावर में। बैकस्लैश int कुछ भी लिखोगे, हाईलाइटेड रीजन के अंदर रहोगे तो नहीं जाएगा। यू हैव टू बी आउटसाइड योर हाईलाइटेड रीजन। मेरा देखो हाईलाइट नहीं हो रहा है, जब तक वो हाईलाइटेड है तब तक वो पावर में नहीं जाएगा, जब तक वो इस हाईलाइटेड रीजन के अंदर होगा पावर में नहीं जाएगा। ओके दी। आया? लिख के ट्राई करो, देखो आया। हो गया? नेक्स्ट स्टेप देखो, इक्वल्स टू e टू दी पावर, अब सॉल्व कर लो, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 0.00908 t प्लस 0.0005 t स्क्वायर, ब्रैकेट्स क्लोज, अंडरस्कोर 0 टू दी पावर 5 एंड ब्रैकेट्स क्लोज, स्पेस, alt equal e to the power माइनस ऑफ 0.00908, इसको सॉल्व करके बस वैल्यूज बैठा रहे, 0.005 इंटू 25, ठीक है। टी स्क्वायर, टी का वैल्यू 5 है 60 और ये टी का वैल्यू 5 है, यहाँ पे टी स्क्वायर 25 हो जाएगा, स्पेस। So this is value is equal to 0.94374. ये एग्जाम में इतने सब स्टेप्स दिखाना पड़ेगा? नहीं, तुम लोग स्किप कर सकते हो, ये वाला स्टेप्स यहाँ बीच से स्टेप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम तुम लोग को सब दिखा दे रहे बिकॉज एवरी स्टेप में कुछ नया है। इसमें ब्रैकेट्स है, इसमें नॉर्मल है, फिर तुम लोग को आएगा नहीं कुछ भी, तो इसलिए आई एम शोइंग यू ऑल एवरीथिंग। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ELT 15 मेल्स एज X 58
के लिए दिया हुआ है, 62 के लिए दिया हुआ है, एस्टिमेट L60 अंडर द फॉलोइंग अजम्पशंस। पहला वाला है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेथ्स बिटवीन एग्जैक्ट एजेस 58 एंड 62 years। सो यूडीडी निकालना है बिटवीन एग्जैक्ट एज 58 एंड 62 years। सॉल्व करते हैं उसको। सो पार्ट 1 alt equals to L_60 चाहिए हम लोग को, which will be under uniform distribution L_58 minus L_62 सॉरी हाँ L_62 और बीच में हम लोग को वो इंटरपोलेशन लगाना है इसके साथ, which is 60 minus 58 divided by 62 minus 58। ठीक है, so this gives us a value interpolation के बाद, so equals to 88792। और देखोगे तो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 88792 एंड देन माइनस, इसको सॉल्व करने से आएगा 0.5। यहाँ पे देख लो 60 माइनस 58 2 होता है, 62 माइनस 58 4, 2/4 0.5 इंटू L58 का वैल्यू 4619 which is also given। L60 अच्छा यहाँ पे एक मिनट, L62 नहीं होगा, इंटरपोलेशन लगाना L58 माइनस L62 ये होना चाहिए 0.4619 and then you can solve this 86482.5। पार्ट 2 बोला है कांस्टेंट फोर्स ऑफ मोडालिटी। यहां तक हो जाए तो बताना, फिर CFM शुरू करेंगे। हो गया मैम। हो गया। CFM के लिए क्या होगा, L60 divided by L58 is equal to L62 divided by L60। प्रपोर्शन सेम रहता है उसका। तो सॉल्विंग दिस हम लोग को मिलेगा L60 is equal to, ये वाला ठीक से देखना, \SQRT ब्रैकेट्स में L_62 इंटू L_58 स्पेस ब्रैकेट्स क्लोज। अभी तक हम एक ही बार स्पेस सिर्फ अंडरस्कोर रखने के बाद स्पेसेस दिए थे, SQRT के बाद एक बार भी स्पेस नहीं दिए, ब्रैकेट्स क्लोज एंड देन स्पेस, तब पूरा के ऊपर SQRT आएगा। ठीक है, फिर से दिखा दे रहे, \SQRT ब्रैकेट ओपन L62 इंटू L58 ब्रैकेट्स क्लोज स्पेस। ठीक है, which gives us the value is equals to 8। तुम लोग डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके लिख सकते हो 86451.7। ये वाला करो सबको। ये क्लास पे आप ड्राइव में शेयर की हो? नहीं, आज वाला क्वेश्चन अभी तक ड्राइव पे डाले नहीं है, डाल देंगे हम। तो क्या
गया मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3, let t be a random variable denoting future lifetime after age x and let t be another random variable denoting the lifetime of a newborn person. Now part 1 is defined in terms of probabilities sxt to st, the survival function of t, and defined in terms of probabilities involving tx, the force of mortality. तो पहले in terms of sxt निकालने के लिए क्या होगा बताओ, who will tell me this? Define in terms of probabilities sxt. sxt क्या बोला है? सर्वाइवल फंक्शन tx is greater than small t. Yep. probability tx greater than small t. So question 3 part 1, alt equal to s underscore x space t is equals to probability t underscore x space is greater than t. Probability tx is greater than t. Next क्या बोला है? Derive an expression relating sxt to st, the survival function of t. Expression निकालना है हम लोग को, derive करना है. Okay, so derivation के लिए alt equals to s underscore xt is equals to tpx. So control shift p मेरा shortcut है, ठीक है. tpx is equals to x plus t mu 0. So control shift p I am writing यहाँ पे मेरा, just click on this t, तुम लोग इसको edit कर पाओगे. x plus t, फिर x पे क्लिक करना तो वहां पे edit कर पाओगे. tp0 is divided by control shift p xp0. My keyboard space is equal to sx plus t divided by sx. ठीक है, ये हम लोग का डेरिवेशन हो गया 1 पार्ट का. नेक्स्ट इज, तुम लोग को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? यस मैम. हाँ, नेक्स्ट बोल रहा है क्या? डिफाइन इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज इन्वॉल्विंग tx द फोर्स ऑफ मोर्टालिटी. फोर्स ऑफ मोर्टालिटी डिफाइन करना है. जिस पार्ट, ये पार्ट 2 होगा. जस्ट नंबरिंग में मेरा थोड़ा दिक्कत है, वो तुम लोग ठीक कर लेना. मेरा ये पार्ट 3 करेंगे अभी जो होगा, ठीक है. द डेफिनेशन ऑफ म्यू एक्स प्लस टी इज alt equals to backslash mu underscore x plus t is equal to limit underscore brackets में h right arrow 0 स्पेस. देखो ये वाला सब देख लो, लिमिट अंडरस्कोर ब्रैकेट h राइट एरो स्पेस 0 स्पेस, लिमिट h टेंड्स टू 0.
ये सबका हो गया? Yes, done. यस देख हाँ जी। देखो, probability t underscore x is less than equals to t plus h given tx is greater than t divided by h. क्या बताए वापस से? लिमिट वाला पार्ट। लिमिट वाला पार्ट। ऑल्ट इक्वल्स टू लिमिट अंडरस्कोर ब्रैकेट्स में h, फिर राइट एरो स्पेस 0 स्पेस लिमिट h टेंस टू 0 और उसके बाद जो भी तुम लोग को लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ t अंडरस्कोर x लेस देन इक्वल्स टू t प्लस h गिवन t अंडरस्कोर x ग्रेटर देन t ब्रैकेट्स क्लोज डिवाइडेड बाय h। हाईलाइटेड पोर्शन में ही रहना, प्लीज डोंट कम आउट ऑफ दैट बिकॉज लिमिट पूरा के साथ लगेगा, ठीक है? अभी क्यों ऐसे हो गया? डिवाइडेड बाय h। अभी तो यहाँ पे किए, फिर यहाँ पे अजीब से हो जा रहा है। रुको, यहाँ पे ऊपर में ठीक हो गया, नीचे में गड़बड़ दिखा रहा। Probability underscore x is less than equals to t plus h given t underscore x is greater than t brackets close divided by h। हाँ, यहाँ पे तो आ जा रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई इट वाज नॉट कमिंग इन डाउन लाइन। हाईलाइटेड पोर्शन से बाहर मत निकलना वरना वो डिवाइड में नहीं आएगा प्रॉपर्ली। हो गया यहाँ तक? हाँ मैम हो गया। Next, the Weibull distribution has a survival function given by Sxt is equals to e to the power minus lambda t whole to the power beta, where lambda and beta are parameters. Derive an expression for the Weibull force of mortality in terms of lambda and beta. Terms of lambda and beta में मेरे को Weibull force of mortality निकालना है. So this is equals to, हम लोग को पता है म्यू एक्स टी म्यू अंडरस्कोर एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू माइनस, देखो डेल डेल टी होता है ना, डी डी एक्स डी डी टी ऑफ एल एन टी पी एक्स होता है, तो माइनस पार्शियल डेल पार्शियल, don't forget to give backslash, del del t of ln of
TPX is equal to, कॉपी कर लो, and once you copy, this is equals to ln of s underscore x t. ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू म्यू, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा, म्यू एक्स प्लस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल डेल टी ऑफ e to the power minus lambda t whole to the power beta. So that is minus sxt is equals to this, no? हाँ, ln of e to the power minus backslash lambda t whole to the power backslash of beta, which is equals to lambda t whole to the power beta. इसको सॉल्व करेंगे तो बैकस्लैश बीटा बैकस्लैश लैम्डा होल टू द पावर बीटा टी टू द पावर बीटा माइनस 1, ये आएगा आंसर, डी डी टी ऑफ लैम्डा टी होल टू द पावर बीटा. ये देख लो, डन. Yes, please. Done. Next, question 4. Prove that under Gompert's law of mortality, Gompert's law, the probability of survival from age x to age x plus t, TPX is given by TPX is equals to e to the power b by ln c to the power x, c to the power t minus 1. तो पहले ये derivation करना है. So for this derivation, let's do. We know that alt equals underscore 0 to the power t backslash mu underscore x plus s ds is equal to backslash int underscore 0 to the power t b c to the power x plus s. Gompert's law में यही होता है ना, b mu x is equals to b c to the power x. यहाँ पे mu x plus s ले रहे हैं, ds equals to backslash int underscore 0 to the power t c to the power s ds, और बाहर में b c to the power x रह जाएगा. Okay.
Now this is equals to bc to the power x backslash int underscore 0 to the power t e to the power s ln c, ठीक है, ds, which is equals to bc to the power x divided by ln c into e to the power s ln c underscore 0 to the power t. Okay. एक second, ln c space brackets close underscore 0 to the power t, and then this is equals to bc to the power x divided by ln of c is e c to the power s underscore 0 to the power t, which is equals to brackets bc to the power x c to the power t minus 1 brackets close ln of c. यहाँ तक करो सब कोई, कुछ भी नया नहीं है अभी तक, जितना नोटेशंस यूज किए सब सब वही है. हाँ वो जो e to the power s ln c है ना, वो मेरा पावर में नहीं जा रहा. निधि, हम तुमको बार बार बोल रहे कि तुमको ब्रैकेट्स ठीक से देखना पड़ेगा. ऑल्ट इक्वल्स टू बैकस्लैश int स्पेस देंगे, e टू दी पावर ब्रैकेट्स में लिखो s ln c, ब्रैकेट्स क्लोज करो, स्पेस दो, फिर कुछ लिखो, तभी वो जाएगा. अगर हम दे रहे हैं यहाँ पे ऑल्ट इक्वल्स टू बैकस्लैश int अंडरस्कोर 0 टू दी पावर t, अब देखो ये बॉक्स आया है e टू दी पावर s ln c, स्पेस दे, देखो अभी हाइलाइटेड रीजन में वो जाएगा ही जाएगा. देयर इज नो अदर वे. ई टू दी पावर ब्रैकेट्स में लिखोगे और स्पेस दोगी तो वो ऊपर जाएगा ही. यू हैव टू बी इन योर इक्वेशन.
हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 का जो एकदम लास्ट वाला लाइन था, एक बार वहाँ पे आइए ना। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 का? हाँ, ये वाला हो गया। ये वाला लाइन? हाँ हाँ, यहाँ पे जो लैम्डा के पावर में बीटा लिखा हुआ है, तो एकदम लास्ट में इक्वल्स टू लास्ट वाले जो आंसर है, हाँ, लैम्डा के पावर में बीटा जो लिखा हुआ है, तो उसको ऐसे इन द बैकस्लैश लैम्डा के पावर में बैकस्लैश बीटा करके लिखेंगे ना? नहीं, alt equal to backslash lambda to the power backslash beta, तब हो जाएगा स्पेस देने के बाद। पावर का साइन रहेगा बीच में आ चुकी। पावर का साइन किए थे, हम ब्रैकेट ओपन नहीं किए थे, इसलिए वो ऊपर नहीं गया। हाँ, ठीक है। दी जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो हम जो ds लिखते हैं वो भी तो डेल्टा एस ही होता है। कौन सा? नहीं, डी मतलब डिफरेंशिएशन होता है, डेल्टा मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। दोनों में डिफरेंस होता है, डी और ये में, डेल्टा में। दी एक बार थोड़ा नीचे करिए। किसी को ये वाला शीट रुको, नहीं ठीक हो गया मेरा, आप वो क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए। हो गया है अभी। हो गया, ओके। नेक्स्ट, for a certain population, estimate the survival probabilities that are available as follows: 1p 50 is equal to 0.995, 2p 50 is equal to 0.989. Calculate the values of b and c and consistent with these observations. So part 2 निकालने के लिए we have been given the value of 1p 50. So control shift p यहाँ पे मेरा आ रहा है, थोड़ा सा हम जूम इन कर रहे हैं, मेरे को दिख नहीं रहा इसका। 1p50 which is equals to e to the power minus, ब्रैकेट्स देना फिर लिखना, माइनस bc to the power x, अच्छा bc to the power 50 into c to the power 1 है, c minus 1, brackets close, divided by ln of c, space brackets close space, ये ऐसे आएगा। and this is said to be equal to 0.995. and next वाला, just copy this, control v, 2p50 c square, this is said to be 0.989, ठीक है। टेकिंग लॉग्स, लॉग लेने के बाद सिर्फ न्यूमरेटर कॉपी करना, थोड़ा केयरफुली सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। log is equals to log of minus of ln minus भी हटा दो, minus of ln of 0.995, and similarly this is equals to
इतना तक हो जाने के बाद डिवाइडिंग द इक्वेशन, अभी आपने इसका पावर नहीं डाला 2 सेकंड। डिवाइडिंग equation 2 by equation 1, so that is equal to brackets में c square minus 1 divided by c minus 1 is equal to ln of 0.989 divided by ln of 0.995 एंड देन इसको सॉल्व करके तुम लोग आंसर ला सकते हो। ऑल टी इक्वल टू सॉल्विंग दिस बचेगा c+1 इज इक्वल टू 2.20665, therefore c is equals to 1.20665. Substituting c in equation 1, therefore b is equals to minus ln of 0.995 into ln of 1.20665 brackets close divided by 1.20665 to the power 50 into 1.20665 minus 1. Which is equals to 3.797 into 10 to the power minus 7. हो जाने से बता देना प्लीज। हो गया। हो गया। अब आई एम गिविंग यू ऑल 10 मिनट्स टाइम, ये क्वेश्चन कंप्लीट करोगे तुम लोग 10 मिनट्स में, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 10:55 समझ लो, 11:05 पे शुड मतलब जब तक आई एम डिक्टेटिंग द क्वेश्चन उसके बाद से 10 मिनट्स, ठीक है। राइट डाउन द इंटीग्रल इक्वेशंस फॉर द mean and variance of the complete future lifetime at age x
T X. Yeah, write down the integral equations of the mean and variance of the complete future lifetime at age x tx. इसका मीन और वेरिएंस निकालना है. 10 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं. 10:55 हो रहा है. 11:05 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए. Complete this by 11:05. मैम इंफिनिटी कैसे देते थे? हाँ, फिर बोलो, फिर से क्या बोल रहे थे? इंफिनिटी. Infinity backslash infty. Backslash infty. एंड तुम लोग को हर बार ई नॉट एक्स वगैरह लिखने का जरूरत नहीं. तुम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स भी लिखोगे तो इट विल बी अंडरस्टूड. ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू ई नॉट एक्स, वो भी अंडरस्टूड होता है. CS2 में उतना जरूरी है भी नहीं. CM1 में फिर भी वी कैन सी. CS2 में तो रिप्लेसमेंट दिया हुआ है सर्वाइवल में सबका.
हो गया सबका वेरिएंस भी? हाँ मैम। डन. सो दिस क्वेश्चन, ये जो तुम लोग का था, डन ना? दिस इज अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन. इसको करने में 10 मिनट्स लग रहा है. सम ऑफ यू टुक ऑब्वियसली लेस टाइम ऑल्सो. एवरी डे प्रैक्टिस करो. इफ आई एम नॉट टेकिंग क्लासेस इन बिटवीन, लाइक ट्यूसडे ऑफ रहता है, you have your Fridays off, Saturday Sundays off है, तो practice those days. Don't wait कि मैं ही सब सिखाऊंगी. Most of the notations are same. At least जो chapters हम लोग किए उसको तो practice करना शुरू करो. Speed बढ़ेगा हाथ का. Okay? तो Wednesday को we'll do 2 chapters, that is Kaplan-Meier estimate and Cox proportional model. उसका बहुत similar है दोनों chapter का, वो वाला Wednesday को करेंगे. Okay? Do you all want me to solve this question अभी? हो गया मैम वेरिएंस में सिर्फ वेरिएंस डिराइव कैसे करेंगे? वेरिएंस को ठीक है, हम दोनों सॉल्व ही कर दे रहे हैं. सिर्फ वैसे ही करेंगे ना, एक्सपेक्टेशन टी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन टी होल स्क्वायर का होल स्क्वायर. हाँ हाँ बस वही लिखना है ना? हाँ, वो लिख के बाद डिराइव भी करना है. 3x स्क्वायर. अच्छा अभी पहले tx तो निकालें. पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ tx इज इक्वल्स टू बैकस्लैश int अंडरस्कोर 0 टू द पावर infty स्पेस tft dt which is equal to backslash of int underscore 0 to the power backslash infty tpx backslash mu x plus t dt. ये मेरा e नॉट x हो गया और 0 to infinity tpx mu x plus t dt. ये भी मल्टीप्लाई होगा ना? हाँ हाँ, ये भी मल्टीप्लाई होगा ना? into t. हाँ राइट. और इसको ब्रेक करने के बाद वी गेट ये आता है ना, ब्रेक करने के बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ tx और वेरिएंस ऑफ tx के लिए expectation of t underscore x to the power 2 minus expectation of t underscore x whole square is equals to यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा tpx mu x plus t dt माइनस कंट्रोल v. यहाँ पे एक ब्रैकेट्स, तो आउट ऑफ दिस एक ब्रैकेट्स. दिस इज योर आंसर. देख क्लियर है ये वाला सबको साथ? हाँ मैम. यस मैम. हाँ dt जिन लोगों को टाइम चाहिए था पढ़ने के लिए. हाँ सचिन बोलो. मैम आपका dt सब्सक्रिप्ट में हो गया. कौन सा dt? ये वाला क्या? यस अच्छा सॉरी. ठीक है, जिन लोगों को टाइम चाहिए था पढ़ने का, सर्वाइवल मॉडल्स आई एम गिविंग टाइम. लोग का चैप्टर 6, अब चैप्टर 7 8 के लिए तुम लोग टाइम ले लो एक दिन का. प्लीज कंप्लीट दोस whoever wanted टाइम टू स्टडी. फिर हम लोग वेडनेसडे को we'll do the remaining चैप्टर. ओके, वेडनेसडे को 2 चैप्टर्स कर लेंगे. क्लियर है? और दी पे ड्राइव में शेयर कर दीजिएगा. हाँ, ड्राइव पे इसको डाल देंगे. ओके मैम एक डाउट है. हाँ बोलो.
मैम अगर इंटीग्रेशन करके मतलब बैकस्लैश INT करके उसके बाद अगर अंडरस्कोर देना भूल जाए और फिर 0 to the power t करे तो फिर तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, तो उसको एडिट कैसे करेंगे अगर वो एग्जाम में अगर मिस हो जाए या भूल जाए तो वापस जो मैं लिख एक मैम। मिनट तुम मेरे को, हाँ तुम मेरे को बोलते जो मैं वैसे वैसे लिखती हाँ जाऊंगी, बैकस्लैश INT करके उसके बाद INT, हाँ हाँ उसके बाद स्पेस, स्पेस, हाँ उसके बाद अंडरस्कोर अगर भूल जाए और 0 to the power t रहे, मतलब स्क्रीन पे अगर ध्यान नहीं किया और 0 to the power t रहे, हाँ तो फिर उसको एडिट करके वापस से लिमिट्स में कैसे करेंगे या फिर वो डायरेक्ट पूरा करना पड़ेगा एडिट? ये मिटाना पड़ के इसको मिटा के ओके, अंडरस्कोर 0 to the power t करोगे तो आ जाएगा। 0 to the power उसमें t को सिर्फ मिटाना पड़ेगा, पूरा को नहीं मिटाने का जरूरत है। ठीक है, तुम लोग का मैम अगर ये ऐसे, हाँ हाँ बोलो बोलो। एक्सपेक्टेशन में बाई पार्ट्स दिखाने का जरूरत है या डायरेक्ट लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 2 मार्क्स का सम था ईशा, डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स, ये 2 मार्क्स था, तो 2 मार्क्स में पूरा बाईपास वगैरह दिखा के कोई सेंस नहीं है। ओके, ओके मैम। मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा तुम लोग कितना स्टेप्स दिखाओगे। एंड वी आर वेटिंग, लेट IFOA रिलीज द स्पेसिमेन क्वेश्चंस, तो और भी क्लैरिटी आ जाएगा। ओके, इज दैट सारा डेरिवेशन प्रैक्टिस करना है ना बोर्ड में। क्या बोल रही हो आ चुकी? सारा डेरिवेशन करना है ना बोर्ड में प्रैक्टिस। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं है। डेरिवेशन पे सारा करना है ना बोर्ड में प्रैक्टिस। आ चुकी चैट बॉक्स में टाइप करके, तो बहुत ही ब्रेकिंग वॉइस आ रहा है। दी वो पूछ रही है सारा डेरिवेशंस प्रैक्टिस करना है ना? हाँ हाँ, सारा डेरिवेशंस प्रैक्टिस करना है, सब डेरिवेशंस प्रैक्टिस करना रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस तो सब करके रखो, बिकॉज दे हैव सेड कि पुराना फॉर्मेट के जैसा ही पेपर रहेगा, ओनली दे विल इंक्लूड MCQs इन सम ऑफ द मेजर पार्ट्स जहाँ पे बहुत ज्यादा मैथमेटिकल टाइपिंग है। अब वो क्लैरिटी नहीं है कि कौन से क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मैथमेटिकल टाइपिंग है, तो तुम लोग अपने हिसाब से सब प्रैक्टिस करके रखो। ओके ओके, थैंक यू देन। और पूछना था, आवाज आ रहा है? निधि, could you please repeat her voice, उसका ईयर, आई थिंक उसका माइक इज इस बार मेरे को भी नहीं समझ आया। ठीक है, कल हाँ पूछ लेंगे, आप कल उसका माइक थोड़ा सा ये है इसीलिए। हाँ, हाँ बोलो दर्पणा। वो मेरा में न्यू पेज का प्रॉब्लम नहीं था, मतलब न्यू पेज आ रहा है तो भी उसमें लिख नहीं पा रहे हमको, ऊपर में जाके न्यू पेज मतलब बिटवीन सम्स में जाके फिर लिखना पड़ा। मतलब न्यू डॉक्यूमेंट खोल के लिखना पड़ा, उसमें नहीं लिख पा रही हो? हाँ नहीं, मतलब उसी डॉक्यूमेंट में मिडिल ऑफ द सम्स, मतलब जैसे 1 और 2 के बीच में जाके मेरे को न्यू पेज में लिखना पड़ा, जो मेरा लास्ट के बाद न्यू पेज आ रहा था उसमें नहीं टाइप हो रहा था। वो तुम्हारा डॉक्यूमेंट क्योंकि करप्ट हो गया, तुम उसको वो शीट में जितना कुछ लिखी हो ना, उसको कॉपी करके न्यू हाँ डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर लो। ठीक है, ये अगर ऐसा एग्जाम में होगा तो क्या करेंगे? हमेशा सेव करते रहो ना, तुम अभी तक सेव नहीं की थी, इसीलिए हर 5 मिनट में सेव करते रहना पड़ेगा, तब करप्ट नहीं होगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, ठीक है ठीक। हाँ तुम लोग को ये हैबिट डालना पड़ेगा, हर 5 मिनट्स में सेव करते रहो। और किसी को कोई दी क्वेश्चन है? हाँ बोलो। दी लाइक हम लोग इक्वेशन को सेव कर लेते हैं, तो अगर हाँ, हम लोग को उसको डिलीट करना है तो वो कैसे होगा? इंसर्ट, इक्वेशन टैब में गए, यहाँ पे देखो, इसको अगर मेरे को डिलीट करना है तो राइट क्लिक, अच्छा सॉरी हम लेफ्ट क्लिक कर दिए, राइट क्लिक, ऑर्गेनाइज एंड डिलीट, और इसमें जाके यहाँ पे डिलीट कर दो, सिलेक्टेड रहेगा, यहाँ से डिलीट कर दो। ठीक है, ओके दी। और किसी को कुछ डाउट?
Any more doubts, anybody? No. Then thank you. नहीं दी Thank you. थैंक यू जी। Thank you, Dee. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू दी Bye. Bye.